of your entrance exam, and that's why you need to cover it along with whole basic understanding of all the topics of plant physiology. Talking about our today's topic, we are going to deal with transport in plants, and basically we are going to study about what diffusion means, what are the types of diffusion, what are the types of transport, and specifically diffusion, facilitated diffusion, and active transport. Talking about plant physiology, why we are studying plant physiology and what is plant physiology? Plant physiology is the science of how plants develop, grow, and respond to their environment at the cellular and biochemical level. प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में एक छोटा सा टर्म नहीं है. इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ साइंस जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या उनके फेजेस हैं डेवलप करने के. एक छोटा प्लांट होता है, वो उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, ट्री बन जाता है. कैसे वो ग्रो कर रहा है, क्या उसके अंदर एनाटॉमिकल, उसकी प्लांट की इंटरनल चेंजेस क्या हो रहे हैं, और उसके एक्सटर्नल जो बिहेवियर है उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. लेकिन जो इंटरनल बिहेवियर है उससे उसकी फिजियोलॉजी कैसे अफेक्ट हो रही है वो हम यहाँ पढ़ते हैं, और एनवायरमेंट से वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एट सेल्यूलर एंड बायोकेमिकल लेवल. कहने का मतलब है कि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं उस लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे प्लांट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये स्टडी है प्लांट फिजियोलॉजी. सो बेसिकली स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शन of metabolic activities is known as plant physiology. And who is the father of plant physiology? That is Stephen Mayles. Stephen Mayles is considered as father of plant physiology. And on the other hand, Sir J.C. Bose, Sir Jagdish Chandra Bose. This is Sir Jagdish Chandra Bose is very highlighted person whom we know, most of us know about him. He gave a very important contribution towards the field of plant physiology in India. And thus Indian father is Sir J.C. Bose and father is Stephen Mayles. Now talking about further about our today's topic, that is diffusion. First we will study about diffusion. One correction I would like to give you is that this is Stephen Hales, where I have written Stephen Mayles. This is by mistake written as Mayles. This is Stephen Hales, STEPHAN HALES. Stephen Hales is regarded as the father of plant physiology for his many experiments. And Sir Jagdish Chandra Bose, he is considered as Indian father of plant physiology. तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनके सेलुलर और बायोकेमिकल लेवल पे. वही स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी है. उनके अंदर क्या हो रहा है, अगर ज्यादा पानी हो गया कहीं पे जहाँ क्रॉप ग्रो कर रही है तो उस वजह से प्लांट में क्या इफेक्ट आया. अगर हमने उसमें कुछ एक्सटर्नल हार्मोन सप्लाई कर दिए, ऑक्सिन हो गया, इथाइलिन हो गया, तो उससे प्लांट्स पे क्या इफेक्ट आया. यू मस्ट हैव सीन कि बनाना, जो रॉ बनाना होता है उसमें राइपनिंग होने लगती है अगर कुछ दिन आप बाहर छोड़ दो तो. क्यों हो रही है वो राइपनिंग, कैसे वो बनाना कच्चे से पक जाता है पेड़ से टूटने के बाद भी, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड. अदर देन दैट, क्यों प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट्स की तरफ उनका रुझान होता है,
क्यों, व्हाई दे आर जियोट्रॉपिक, वो कैसे हो रहा है। अदर देन दैट, किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी की बाहर किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट की वजह से प्लांट में जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं और उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। बट before beginning to go into the deep of this thing, we must learn कि plant water relationships क्या हैं, transport कैसे हो रहा है। Talking about that, we all know that water is essential for life and it is the most abundant substance of living cell. Almost 70% of cell weight is water. So that is why water is very important for physiological activities of plant. And अगर हम बात करें कि कैसे important है, क्या उसकी ऐसी properties हैं, then you must know कि water किसी भी और liquid के comparison में किसी भी substance को जल्दी और ज्यादा घोलता है। It dissolves more substances than any other liquid. तो कहने का मतलब क्या है कि water एक excellent solvent हुआ, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट भी होती है, तो उस वजह से वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को बिना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द रीजन कि प्लांट्स टेम्परेचर में लार्ज फ्लक्चुएशंस को रेजिस्ट कर लेते हैं। रीजन बीइंग वाटर का बहुत बड़ा रिलेशन प्लांट में है एंड वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुए बिना ही वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी प्लांट्स रेजिस्ट कर जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, वाटर में। उसकी वजह से उसमें कोहेशन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, सरफेस टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है उसको एबिलिटी मिल जाती है दैट इट रेजिस्ट टेंशन विदाउट ब्रेकिंग। These things are about plant-water relations, and we will be studying more detail about these in our next few chapters and videos and sessions. But now, moving on to our very first topic is diffusion. That is a very basic term, and we need to understand it before moving ahead in plant physiology. So, what is diffusion? अगर आम भाषा में मैं बात करूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, तो आप या आपके मम्मा या आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में। अगरबत्ती जला के हम उसको पूरा मतलब when we do prayers and all, तो उसको पूरे कमरे में, पूरे घर में हम उसकी फ्रेग्रेंस को फैलाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप उसको उठा के हर कमरे में नहीं भी लेके जाओ, तब भी एक ही प्लेस से पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो फ्यूम्स होते हैं, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरे घर में प्लेजेंट उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कैसे हो रहा है? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, दे आर डिफ्यूजिंग in the air. उस डिफ्यूजन की वजह से that fragrance is spreaded all over your house from a single place only. अब with respect to plant अगर मैं बात करूं तो हम plant water relation की बात कर रहे हैं and we will talk in terms of water. Then what is diffusion? It is the movement of molecules or ions from the region of their higher concentration to their region of lower concentration. एक बार के लिए अगरबत्ती की बात आप सोच के देखो कि अगरबत्ती में तो सारे ही पार्टिकल्स अगरबत्ती के हैं, घर के अंदर पार्टिकल्स नहीं है अगरबत्ती के, तो मतलब क्या है कि बिल्कुल ही कंसंट्रेशन नहीं है या लो कंसंट्रेशन है अगरबत्ती के पार्टिकल्स की। दैट इज वाई क्या हो रहा है कि उसके पार्टिकल्स उस रीजन से जहां उनकी हाई कंसंट्रेशन है, जो कि अगरबत्ती में है, वहां से वो फैले जा रहे हैं हमारे घर के बाकी एरिया में जहां पे अगरबत्ती नहीं लगाई है।
टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड प्लांट, आपके मॉलिक्यूल्स या आयंस की मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन, उनके हाई कंसंट्रेशन के रीजन से, उनके किनके मॉलिक्यूल्स और आयंस की जहां पे हाई कंसंट्रेशन है उस रीजन से उनकी लो कंसंट्रेशन जहां है उस रीजन तक की मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन. It is a movement of molecules or ions from the region of their high concentration to their lower concentration until the molecules are evenly distributed throughout the available space. कब तक होगी ये मूवमेंट? जब तक सारे मॉलिक्यूल्स इवनली, समतल तरीके से, बराबर तरीके से कंप्लीट अवेलेबल स्पेस में फैल ना जाए, तब तक डिफ्यूजन चलेगा. सो यू मस्ट रिमेंबर कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स या आयंस की ही, उन्हीं की हायर कंसंट्रेशन से उन्हीं की लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. नाउ एज वी स्टडीड अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, हमने बात की कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, कैसे प्रोसेसेस हैं. तो अगर हम बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देन व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, उसी के अकॉर्डिंग हम फर्दर मूव ऑन करेंगे. क्या है एस्पेक्ट्स? फर्स्ट वंस आर फिजिकल एस्पेक्ट, सेकंड वंस आर वाइटल एंड थर्ड वंस आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स. फिजिकल एस्पेक्ट्स दिए हैं, क्या क्या होते हैं? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, डीपी, DPD. What is DP and DPD? DPD is diffusion pressure deficit and DP is diffusion pressure. We will study about these terms further. TP, Tugger pressure. WP, wall pressure. Plasmolysis, water potential. Imbibition, wilting, absorbing water, ascent of sap, transpiration, guttation, mineral nutrition. हम एक एक टर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये क्या बोल दिया. ओके, देन वाइटल एस्पेक्ट्स. वाइटल एस्पेक्ट्स क्या है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस जो हो रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट्स में कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. कंस्ट्रक्टिव क्यों है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि वो प्लांट अपना खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस से. बट डिस्ट्रक्टिव क्यों है? रेस्पिरेशन हो रही है, O2 छोड़ रहा है बाहर, CO2 ले रहा है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, डोरमेंसी एंड प्लांट मूवमेंट्स. नॉट प्लांट मोमेंट्स, इट्स प्लांट मूवमेंट्स. इनके बारे में भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. बट ये एस्पेक्ट्स हैं. अगर वाइटल की बात करें तो कौन से हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल वालों की बात करें तो कौन से हैं, फिजिकल की बात करें तो कौन से हैं, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है. So, what is transport in plants? In a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients, and PGRs, that is plant growth regulators. फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की? किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है विद इन ट्रांसपोर्ट प्लांट्स? इन चार चीजों को, वाटर को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को. यहाँ से सब कवर हो जाएगा. अगर हमें स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करूं कि बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस पे अगर आपको मूवमेंट करानी है तो आप डिफ्यूजन के थ्रू करा सकते हो. आपके घर के अंदर कोई खुशबू फैलानी है, डिफ्यूजन से हो जाएगी. सिमिलरली छोटे से प्लांट में या प्लांट के छोटे से डिस्टेंस में कहीं पे कुछ करना है ट्रांसपोर्ट, तो डिफ्यूजन से हो जाएगा. दैट विल बी ओके. नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करा लेंगे, पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्या होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. थर्ड प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा देंगे एनर्जी यूज करके. फाइन, हो गया. बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ छोटे ही एरिया में ट्रांसपोर्ट कराना है. सामान जरूरी तो नहीं है आपको कि आपको नरवाना की मार्केट, जीन की मार्केट, दिल्ली की मार्केट से अपने अपने एरिया में लेके आना हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई सामान जयपुर से लेके आना हो. देन व्हाट विल यू डू? उसके लिए प्लांट में भी बड़े लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बढ़िया वाला वेस्कुलर सिस्टम चाहिए.
जो उसको ट्रांसपोर्ट करा सके. And what are the vascular systems? You would have studied about this in anatomy of flowering plants, that are xylem and phloem. That is translocation. ये प्रोसेस क्या है जहां पे longer distances पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. This process is known as translocation and it is facilitated with the help of the vascular system, that is xylem and phloem. अब हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, लेकिन इस डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बढ़िया वाले कैरेक्टर हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज पैसिव मूवमेंट. डिफ्यूजन से पैसिव स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है. कैसे? कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रही हैं. कोई एक उनका पर्टिकुलर मैनर नहीं है कि पहले ये वाला मॉलिक्यूल मूव करेगा, फिर ये वाला करेगा, पहले इस वाला करेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, फिर सेकंड वाला करेगा क्योंकि उसमें एनर्जी कम है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. रैंडम फैशन में मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, कभी कोई कभी कोई, कभी इधर कभी उधर, ऐसे मूव करेंगे, लेकिन उनके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में. एंड दिस इज पैसिव मूवमेंट. एक्टिव नहीं है ये मूवमेंट, किसी एनर्जी का जरूरत नहीं है, पैसिव मूवमेंट होती है. एटीपी की जरूरत नहीं होती. डिफ्यूजन में किसी तरह की एनर्जी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसे थोड़ी ना है कि एक पर्टिकुलर मैनर में उसको मूव करना पड़ रहा है. सिर्फ ग्रेडियंट का उसको पता ही है कि मुझे अपने हायर से लोअर में जाना है. कोई फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स की जरूरत उसको नहीं है, एटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंडम फैशन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. देन डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम. लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है डिफ्यूजन, और एक स्लो प्रोसेस होता है. दिस इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस. एनर्जी यूज नहीं कर रहा, आराम आराम से होगा, स्लो प्रोसेस है. देन अगर मैं डिफ्यूजन रेट की बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है. जहां पे हमने अगरबत्ती की बात की थी तो वहां क्या था? गैस ही था, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. तो डिफ्यूजन रेट गैसेस का सबसे ज्यादा, देन लिक्विड्स का, देन सॉलिड्स का. बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन होने की बजाय सॉलिड्स में डिफ्यूजन ज्यादा लाइकली होता है. इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स देन ऑफ सॉलिड्स. कहने का मतलब ये है कि साबुन से साबुन की तरफ कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा सोल्यूट जिसके अंदर आपको डिफ्यूजन कराना है, उसमें आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, रेदर देन उस पार्टिकल के डिफ्यूजन के. कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफ्यूजन आराम से हो सके, इवन अगरबत्ती सोल्यूट, उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक अगरबत्ती से दूसरी अगरबत्ती का डिफ्यूजन नहीं होता है. गैसेस में हो जाएगा, आपस में लिक्विड में हो जाएगा, दो सॉल्वेंट्स में डिफ्यूजन हो जाएगा, दो गैसेस में हो जाएगा, बट दो सॉलिड्स के डिफ्यूजन की बजाय उनमें डिफ्यूजन मोर लाइकली होता है. only means for gaseous movement within the plant body. Of course, प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो वहां पे गैसियस मूवमेंट के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज डिफ्यूजन. अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे इफेक्ट होता है? नंबर 1 इज ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन. ऑफ कोर्स हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो ये बात इफेक्ट करेगी डिफ्यूजन को. आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंसंट्रेशन डिफरेंट देके कि डिफ्यूजन का बताओ कि डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या होगी, कहां से कहां मूव करेगा. तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में करेगा. Then the second one is permeability of membrane separating them. जो मेम्ब्रेन हम उसके बीच में लगाए हैं, उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, सेमी परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल है. हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस किस तरह की मेम्ब्रेन होती हैं. जनरली आपको मैं ये बता दूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं. प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स सेमी परमेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो सेलेक्टिवली है वो वाली सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करेगी.
लेकिन जो सेलेक्टिवली जो सेमी परमिएबल है उसके केस में दोनों को अलाउड नहीं होगा। उसके केस में आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या यूज कर रहे हो। अगर प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स के केस में सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि जो प्लांट्स की मेम्ब्रेन होती हैं वो दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं, सॉल्वेंट को भी और सोल्यूट को भी। सीधी सी बात है ना, पानी को भी तो अलाउ कर रहा है प्लांट, तो सॉल्वेंट को भी कर रहा है और सोल्यूट को भी कर रहा है। सो कैसी कैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्या वो कराती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन जो है वो किससे इफेक्ट हो रहा है, बाय परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। टेम्परेचर से भी इफेक्ट होगा और प्रेशर से भी इफेक्ट होगा। सी, diffusion is movement of solid or liquid and gas particles from its higher concentration to its lower concentration. I have shown you a diagram जहाँ पे more dp और less dp मैंने लिखा है। less dp मतलब less diffusion pressure, more dp मतलब more diffusion pressure। more गैस पार्टिकल्स हैं more dp वाले में, less गैस पार्टिकल्स हैं less dp वाले में। बीच में एक होल मैंने लगा दिया, तो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, मोर डीपी वाले रीजन से लेस डीपी वाले रीजन में। अब डायग्राम से आप शायद बेटर इस चीज को समझ पाए। देन आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट यू हैव इज डिफ्यूजन रूल। डिफ्यूजन रूल यही जो हमने इसके थ्रू देखा कि मोर जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जहां उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, उससे लो वाले की तरफ जाएंगे, तो मोर डीपी से टुवर्ड्स लेस डीपी मूव करेंगे। फैक्टर्स जो मैंने बताया कि किस पे डिपेंड करता है, उस पे कैसे डिपेंड करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। डेंसिटी के कंपैरिजन में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिफ्यूजन का इनवर्स रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ। देन यू हैव टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा डिफ्यूजन, डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स जितने ज्यादा गैस पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितने कम गैस पार्टिकल उतना कम डिफ्यूजन, तो डायरेक्ट रिलेशन है। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डिफ्यूजन। अब मैंने यहाँ बात की थी आपके साथ डीपीडी की। डीपीडी के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बातें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये चीजें रिलेटेड टर्म्स है, इनको हम पहले कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे डीपीडी के बारे में आएगा। वहां से आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, वहां हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे लाइव, और उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डीपी इज डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर, क्या होता है डीपीडी, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ याद रखना है कि डीपी इज डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये जो डीपी है, इसी के साथ एक टर्म आती है डीपीडी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इस टर्म को मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अगर हम पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल्स की बात करेंगे तो वहां ये टर्म आएंगी ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, दैट इज टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर। उसकी टर्म्स में मैंने ये लिखा है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, डिफ्यूजन से भी ये रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड में डाला है। बट इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। So moving on to the next topic is facilitated diffusion. What is facilitated diffusion? Substances that have a hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane, their movement has to be facilitated. जिन सब्सटेंसेस की हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है, उनको मुश्किल होती है मेम्ब्रेन से पास करने में, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग हैं, तो उनको डिफिकल्टी होती है मेम्ब्रेन से पास करने में, तो इसीलिए उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पे उस तरह के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, एंड वो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी
प्रोटीन्स की वजह से फैसिलिटेशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स को अलग से उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्पेशल प्रोटीन्स यहाँ पे यूज होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, जो बिना एटीपी खर्च करे इस तरह के डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पे कब पहुंचता है, जब जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो इस प्रोसेस को करवा रहे हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस। सेल को पूरी चॉइस होती है कि वो किस सब्सटेंस को चूज करेगा अपटेक के लिए। एंड इनहिबिटर्स जो कि प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करते हैं उनसे ये सेंसिटिव होता है। आइए देखते हैं कैसे। See this diagram. This is a diagram of facilitated diffusion। और यहाँ हो क्या रहा है, जो प्रोटीन्स हैं वो चैनल बनाते हैं मेम्ब्रेन में ताकि मॉलिक्यूल्स उससे पास कर सकें। देखिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, पिंक में जो शो हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इन्होंने चैनल बना लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ताकि ये पास कर सके मॉलिक्यूल्स इनके थ्रू। कुछ चैनल्स हमेशा ओपन होते हैं, बाकी के कंट्रोल्ड होते हैं। Some are large, allowing a variety of molecules to cross। कुछ चैनल लार्ज होंगे, कुछ चैनल स्मॉल होंगे। इनमें एक होता है पोरिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूछा जाता है। क्या होते हैं पोरिन्स? These are the proteins that form large pore in outer membrane of plastid mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through। पोरिन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरियाज की आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज पोर्स बनाते हैं ताकि वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ कर सके जो कि बिल्कुल एक स्मॉल प्रोटीन के साइज के हों। इससे आप थोड़ा सा उसको इमेजिन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह ही पोरिन्स होंगे बट उनका साइज अलग रहेगा। फिगर 11.1 दैट इज दिस फिगर। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाया है that shows an extracellular molecule bind to transport protein। देखो extracellular molecule है ये पूरा जो बनाया है दोनों तरफ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाउंड है, बीच में पिंक वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो रोटेट करता है एंड मॉलिक्यूल को इनसाइड द सेल, ये जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है इसको इनसाइड द सेल इंपोर्ट कर देता है। दैट एग्जाम्पल क्या है? वाटर चैनल्स। वाटर चैनल इसका एग्जाम्पल है जो कि 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने हुए होते हैं। ये जो पोरिन्स हैं 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर चैनल में। दिस इज एन एग्जाम्पल एंड दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम क्या बात कर रहे थे कि अलग अलग तरह की मूवमेंट होती हैं। वो मूवमेंट कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। व्हाट आर दीज? कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे होते हैं जो 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करा सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को एक साथ करा सकते हैं, एक साथ उनका डिफ्यूजन करा सकते हैं। वो कौन से होते हैं? यूनिपोर्ट। एक साथ करा रहे हैं तो यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में। देन सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट कौन से होते हैं? जो दोनों मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करा सकते हैं। हाँ, जो यूनिपोर्ट है उनमें क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन तब होगा जब 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, ए और बी को एक साथ मूव करना पड़ेगा तो यूनिपोर्ट होगा। लेकिन सिम्पोर्ट में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अलग अलग लेकिन सेम डायरेक्शन में। और एंटीपोर्ट में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में 2 अलग मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो जो यूनिपोर्ट वाला है वहां क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल से कोई उसकी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में कहाँ कैसे जा रहा है। वहां पे 2 तरह के मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करेंगे, तो दैट इज यूनिपोर्ट। आपको ये इस डायग्राम से बेटर समझ में
आ रहा होगा। दीज आर द कैरियर प्रोटीन्स जिनको हमने ग्रीन, येलो और ब्लू में दिखाया है, एंड दीज आर द डायरेक्शंस. Now, last topic of today is active transport that uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient. Against a concentration gradient होगा और ATP का यूज करना पड़ेगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे कैरी आउट होता है? यहाँ पे भी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. पंप्स की यहाँ हम बात कर सकते हैं. पंप्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में पंप्स की जरूरत होती है, जो कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए एनर्जी का यूज करते हैं. इनका क्या काम होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अप हील ट्रांसपोर्ट कराना. ध्यान दे रहे हैं आप? मेन डिफरेंस क्या है? फैसिलिटेटेड केस में या डिफ्यूजन के केस में, दोनों ही केस में हमको एटीपी की जरूरत नहीं थी और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा काम हो रहा था. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है. यहाँ पे हाई से लो की तरफ नहीं, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अप हील ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसे. और वो जो दूसरे वाले की हम बात कर रहे थे वो डाउन हील होता है, जो डिफ्यूजन के केस में हमने बात की. और ये ट्रांसपोर्ट कब पूरा हो जाएगा? जब ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स कंप्लीट सैचुरेट हो जाएंगे. एंड जस्ट लाइक एंजाइम्स, एंजाइम्स हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स की तरह जो कैरियर प्रोटीन है वो भी स्पेसिफिक होते हैं. जैसे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही कैरियर प्रोटीन भी एंजाइम्स की तरह उस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होते हैं जिसको वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैरी करेंगे. और इनहिबिटर्स जो प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं. So this is all for today. We have read well about active transport, passive imports, antipodes, facilitated diffusion, and we studied well about diffusion. We studied the aspect of plant physiology, what it is, who gave the term, and who is the father, Indian father and all. So keep liking, watching, subscribing, and sharing Ishita's Botanic. And after watching all the videos, make your notes and comment down your suggestions as well as your doubts so that we can take and solve in other session. In next class, we will be studying the more details about the terms we studied today that have not been explained, and we will study about the water potential and osmosis.